Hello and good morning, viewers. This is Professor Dr. Ashish Mehta, working as Professor and Head in Shri Krishna Government Ayurvedic College in the Department of Panchkarm, and also working as officiating Dean Academic Affairs in Shri Krishna Ayush University, Kurukshetra. Today, this might be the last oration of this marathon Yog Kavacham series. And first of all, before welcoming you all my mighty viewers, I just wanted to thank the thoughtful person behind all this Yog Kavacham, and he is the Honorable Vice Chancellor of our university, Professor Dr. Baldev Babaji. And apart from him, I would like to thank all the dignitaries and authorities of this college and university, especially the Swasthra department, the head, Dr. Seema, the teachers, and Yogendraji, who is behind all this program. Coming on to the topic, I just wanted to straight away come on to my topic. Today's topic is strengthening of body, mind, and soul through Panchkarma. Some of you might be thinking that एक जिज्ञासा सी जाग रही है कि how Panchkarma is there to strengthen especially mind and soul. But later on, when we proceed on this lecture, and you will be able to see this कि Panchkarma is Panchkarma अपने आप में एक complete therapy है. Looking into the matter, I'm not saying that some of the streams or pathies जो different तरीके से चीजों को समझाती है. चिकित्सा शास्त्र जो था, जब हम हिस्ट्री उठा के भी देखते हैं, तो सबसे पहले emphasis was given on to the health. हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षण करना है. उसका रीजन एक है कि यदि आप स्वस्थ हैं तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे. ये पूरी जो सीरीज है ये इस टारगेट के साथ है या थी कि जिसमें स्वास्थ्य डिपार्टमेंट एज अ होल प्लस एन एक्सपर्ट फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट एंड कीपिंग इनटू द माइंड of COVID-19, the current scenario, the pandemic this whole world is struggling for. I'm not here to say only that why only COVID-19. अगर आप हेल्दी हैं, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, तो नॉट ओनली COVID-19, the other many fatal disorders जो आपको मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं, फिजिकली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं, फैटल होते हैं, वो सारे डिसऑर्डर्स से आप बचे रहें. So my emphasis with the Department of Sociology is only to maintain your health. That is why I am saying my topic, I have chosen this topic of strengthening. So there's nothing to talk about any kind of patient. There's always to talk about health. चाहे किसी भी स्ट्रीम को उठा लीजिए. चूंकि मैं एक्सपर्ट हूँ आयुर्वेद का, तो आयुर्वेद में तो क्लियर कट ये है, इवन जहाँ पे किसी भी बड़ी बुक टेक्स्ट संहिताओं को हम उठाते हैं, जहां पर भी चिकित्सा हमारा एक स्थान शुरू होता है, वहां पहले हेल्थ के चैप्टर्स, पहले वो चैप्टर्स हैं जिसमें इंडिविजुअल हेल्दी बने, क्योंकि एक हेल्दी इंडिविजुअली एक नेशन को हेल्दी बना सकता है. स्वास्थ्य डिपार्टमेंट और पंचकर्म डिपार्टमेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट पंचकर्म डिपार्टमेंट या पंचकर्म चिकित्सा अपने आप में एक एसेंस है, एसेंस ऑफ डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज गिवन बाय आयुर्वेद, whether it may be surgery, it may be eye chikitsa, medicine you can say, pedia, gynae, ENT, anything. तो जब आप इस चीज को सोचते हैं कि भाई पंचकर्म क्या है, तो इन सब में से एक एसेंस, एक अमृत तुल्य चीज निकाल के पंचकर्म का निर्माण किया गया, क्योंकि सभी में पंचकर्म था. पंचकर्म एक उस श्रेष्ठ चिकित्सा का नाम. तो जब आप ऐसी एक चिकित्सा, वो एक अलग चीज है कि इसमें एमडी शुरू की गई, दे कुड हैव स्टार्टेड डीएम इन पंचकर्म. सो इट इज द सुपर स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा, you can say. And when we talk about why treatment only, this is not only for treatment of patients. That's why I am saying that today my emphasis is on health. And when we are sitting with
in collaboration with Swasthward department. We are not talking about hospital, क्योंकि hospital word बोलते ही हमारे दिमाग में आता है कि ailments, बीमारी, बीमार व्यक्ति. हॉस्पिटल कौन जाएगा? मुझे आज दुख है, मुझे आज दर्द है, I'll go to the hospital. बट हमें एक ऐसे सेंटर्स बनाने चाहिए. From this platform, I just wanted to give my opinion of Panchkarm clubs. It will be like a Gymkhana club, you can say. It will be like a Rotary or Lions club, you can say. It will be like any kind of association or club. Club means that जहां पे हम हेल्दी इंडिविजुअल की सर्विसिंग कर सकें. पंचकर्म फिजिशियन को अगर बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम वे में लिया है, वी आर द मैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. वी आर द एक तरह से सफाई कर्मचारी ऑफ ह्यूमन बॉडी. इस ह्यूमन बॉडी को भी आप अपनी वैल्यूएबल से वैल्यूएबल चीज को साल में एक बार जरूर सर्विसिंग के लिए लेके जाते हैं. तो सर्विसिंग पे जब आप लेकर जाते हैं तो आप अपनी उस चीज को अनंत काल तक चलाने की कोशिश करते हैं. सिमिलरली जो उन चीजों को भोगता है, उस इतने वैल्यूएबल, इतने बड़े शरीर को हम कभी इस बारे में नहीं सोचते. सो पंचकर्मा क्लब्स आर फॉर देम, जहां पे हम हेल्दी इंडिविजुअल्स की साल में एक बार सर्विसिंग करें और सर्विसिंग करके उस व्यक्ति को फ्रेश बनाएं, उस व्यक्ति को हेल्दी बनाएं, हेल्दी इन एवरी फॉर्म. इनको कभी कोरिलेट मत करिए. ये जो मॉडर्नाइज्ड स्पा सेंटर्स खुल गए या ये एक सिंपल मसाज सेंटर इज नॉट अ club. It's not a Panchkarma club. Panchkarma club has to have a specialist in that, specialist of Panchkarma in that. Because Panchkarma, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, only 5 procedures, no, there are plenty of procedures. 5 procedures वो मेन procedures हैं जो हम परफॉर्म करते हैं. तो अगर आप ये चीज को सोच के चलेंगे कि ये जो स्पा सेंटर्स हैं, these are Panchkarma clubs, no, these are not the Panchkarma clubs. So इसीलिए एक, और हम हेल्दी इंडिविजुअल उनको बोल रहे हैं कि जब आप सपोज मेरी आज उम्र 40 साल है, मेरी उम्र 50 साल है, तो जब आज ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आए हुए हैं कि मैं अगर अपनी मेटाबॉलिक एज, मेरे ऑर्गन्स की एज इंटरनली पहचानने की कोशिश करता हूं, तो इट मे बी 10 to 15 years more. Means if I am 40 years old, my metabolic age might be around 52 or 55. To reduce that age back to 40 years, which is my actual age, is the motive of these clubs. So by Panchkarma procedures, you can go with that. Even a more opinion is, if this kind of thing happens in India and एक healthy nation बनाने की तरफ हम बढ़ते हैं, तो even insurance companies can come forward for these individuals जो साल में एक बार अपनी सर्विसिंग्स कराते हैं. To remain healthy, they can provide more incentives to such individuals. So these are the things. और जब हम अपने शरीर की तुलना करते हैं, मैं अपने शरीर की तुलना एक अगर घर से करता हूं, तो there is a pipeline of water, जो एक साफ पानी, एक स्वच्छ पानी घर के अंदर लेकर आती है. There is a pipeline for sewerage. ऐसा कहीं नहीं होता कि दोनों लाइनें मिक्स्ड हैं, ठीक है. बट ये आर्किटेक्चरल बेनिफिट्स, ये आर्किटेक्चरल भगवान का दिया हुआ हमारे शरीर का है, जहाँ पे एक ही कैनाल है मुंह से लेकर तो गुदा तक, जहाँ पे हम पंचकर्म के प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके इस शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, शरीर को हेल्दी बना सकते हैं. Now coming back on to my topic, strengthening of body, mind and soul, and the first word which comes into the mind is strengthening of body. Strengthening of body means शरीर को स्ट्रेंथन अप करना. शरीर बनता है आवर बॉडी इज ए मल्टी सेलुलर पूरा एक इंडिविजुअल को अगर हम मानते हैं, तो एक एक सेल को साफ रखना, एक एक सेल को स्ट्रेंथन करना इज द मोटिव. And this can be achieved by different Panchkarma procedures. When I count the Panchkarma procedures, the main Panchkarma procedures, those are one, the medicated emesis, ulti karwana, medicated purgations, विरेचन, लूज मोशंस करा, एनीमास देना, डिफरेंट काइंड ऑफ एनीमास आते हैं. द नेक्स्ट वन इज एराइंस, नाक के द्वारा औषधि को प्रविष्ट करना. एंड लास्ट वन इज ब्लड लेटिंग, रक्त मोक्षण कराना थ्रू वेरियस मोडालिटीज.
ये मेन पंचकर्म है, ये मेन 5 प्रोसीजर्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग देयर आर प्लेंटी ऑफ प्रोसीजर्स। अब ये प्रोसीजर ये नहीं है कि कोई पेशेंट, कोई कोई इंडिविजुअल मेरे पास यदि आता है और मैं उसको वो आया और मैंने उल्टी करवा दी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज क्वाइट डिफरेंट दैन जो आप डेली के प्रोसीजर्स करते हैं। यू मे कैन कोरिलेट दिस विद योगिक षटकम। देयर आर सम कॉमन names in Panchkarm and Shatkarm. Basti is one of them. But that Basti is a bit different than that of this Basti, Panchkarm Basti. That is why I am again and again saying कि go for these Panchkarm procedures under some specialist. You can correlate with जल धोती वमन, उल्टी को हम जल धोती के साथ कर सकते हैं। बट जल धोती इज लाइक मैं बहुत सिंपल एक कोरिलेशन करता हूँ। आप डेली जल धोती में पानी पीते हैं और उसको वमन कर देते हैं, गुड है। इट्स लाइक जस्ट वॉशिंग योर कार डेली, बाहर से और अंदर से। डू इट। इससे गाड़ी अच्छी रहती है, गाड़ी स्वस्थ रहती है, हमारा मन अच्छा रहता है, हम उसमें बैठते हैं, सवार होते हैं। बट फिर भी साल में एक बार जरूरत होती है गाड़ी की सर्विसिंग कराने की, जो कि सिर्फ ऑथराइज सेंटर्स पर करानी चाहिए। सिमिलरली आप ये प्रोसीजर्स जो डेली प्रोसीजर्स हैं उनको करते हुए वमन आदि प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने की जरूरत होती ही है। क्योंकि वमन का प्रोसीजर्स, अगर मैं केवल वमन का प्रोसीजर पकड़ूं तो तकरीबन उसमें पहले एक घृतपान प्री ऑपरेटिव प्री वमन प्रोसीजर्स होते हैं जो तकरीबन 7 से 8 दिन के होते हैं। वमन तो 9वें दिन जाके होता है। एंड उसके बाद पोस्ट वमन जो प्रोसीजर होते हैं वो भी तकरीबन 5 से 7 दिन का एक डाइटरी प्लान होता है। तो इट्स अ बिग प्रोसीजर ऑफ समथिंग अराउंड 16 डेज। सो दीज काइंड्स ऑफ स्पेशल कर्मास परफॉर्म करके हम अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन अप करते हैं। वमन और विरेचन करने के बाद, ये वमन और विरेचन का प्रोसीजर जो 1 महीने का प्रोसीजर है, वी हैव साइंटिफिकली प्रूवन दिस कि हमारी मेटाबॉलिक एज बैक होती है। यदि कोई ये बोलता है कि भाई रसायन चिकित्सा या वाजीकरण चिकित्सा इनके लाभ क्या हैं या वमन के प्रोसीजर्स के लाभ क्या हैं, तो दिस हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन। हमारे इसमें लिखा हुआ है ना कि आप यंग हो जाते हैं। यंग मीन्स क्या? मेरी एज तो कम नहीं हो सकती, नेवर। बट मेरी एज वो ही रहते हुए जो कार्य में मैं लगा हुआ हूं वो कार्य उस एनर्जी से ज्यादा हो। मीन्स लाइक if I am 50 years old but I can work like a 35 years male, my organs are working like that, मेरी पाचन शक्ति उतनी अच्छा है, मैं अगर मैराथन रन कर रहा हूँ मेरा हृदय उतना अच्छा है, it means I am getting younger by my organs, my metabolic age is getting younger. तो ये जो फिजिकली मेरी एज जो मेरे डेट ऑफ बर्थ से नापी जाती है, इट हार्डली मैटर्स। एंड पंचकर्म प्रोसीजर्स इसी में काम करते हैं। वमन आमाशय से ऊपर जो कफ का स्थान बताया गया है वहां की सफाई करता है। विरेचन जो है आमाशय से नीचे पूरे एलिमेंट्री कैनाल की सफाई करता है, जहां मोस्टली जो आमाशय से नीचे पित्त का स्थान बताया गया है तो वहां की सफाई करता है। तो पैथिक डिसऑर्डर्स में जो आयुर्वेद में वात पित्त और कफ 3 प्रकार के डिसऑर्डर्स बताए हैं उनके ऊपर कैसे कार्य करता है, और उनको हम एक बेस्ट क्राइटेरिया जो ग्लोबलाइज्ड एक्लेम्ड क्राइटेरिया है उसमें भी समझा सकते हैं। सिमिलरली बस्ती जो है पर रेक्टली जब हम मेडिसिन को इंसर्ट करते हैं, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन को वात का एक हेड ऑफिस बताया गया है, वायु का, वात दोष का, तो अगर हम उसको वहां स्टेबल रख पाते हैं तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स होते नहीं। तो एनिमास का रेगुलर प्रैक्टिस, नाक से औषधि को इंसर्ट करना, डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। कई तरह के तेल हैं। अभी हम आयुष एडवाइजरी में जाकर देखें तो नारियल का तेल, सरसों का तेल, घी इत्यादि को नाक में 2 बिंदु, पुराने पूर्वजों का देखिए वो भी नस्य का एक प्रकार है, वो लोग सरसों के तेल को नाक में 2-2 बिंदु डालते थे। तो दैट इज अ टाइप ऑफ नस्य, हम उसको प्रतिमर्श नस्य कहते हैं। हर इंडिविजुअल ने करना चाहिए। अगेन आई एम सेइंग कि ये 2-2 बिंदु वाला जो है वो रोजमर्रा का काम। जब आप नस्य चिकित्सा की तरफ जाते हैं तो वो एक अंडर स्पेशलिस्ट एक आपको, क्योंकि नाक को सिर का द्वार बताया गया है एंड ये भी प्रूव किया गया है कि नाक से गई हुई चीजें इन नर्वस सिस्टम पे कैसे कार्य करती है। सीएसएफ में उसका प्रेजेंस बताया जा चुका है। तो दीज आर द थिंग्स जिससे हम हर चीज को, लास्टली ब्लड लेटिंग,
ब्लड लेटिंग इज समथिंग मीन्स एक कुछ ऐसी चीजें हैं जो केवल रक्त को निकालने के उपरांत ही शांत हो जाती है। और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिसके ऊपर वर्ल्ड लेवल पर कई जगह रिसर्चेस चल रही हैं, दैट इज लीच थेरेपी, जोंक चिकित्सा। कई जगह गूगल पे आराम से गूगल किया जा सकता है कि जोंक चिकित्सा क्या है। तो वेरी हेल्दी प्रैक्टिस। जोंक को हम अपने यहाँ पे अपने आप में एक संपूर्ण हॉस्पिटल मानते हैं। If a skin disorder you are not getting to it, ki bhai, what kind of skin disorder, go with your Jonk Chikitsa and you'll get marvelous results. So these are the things one can perform, and by performing these things under some specialist in a specialized center, you can say, makes your body strengthen. The next thing which comes into mind is strengthening of mind. Now, what is strengthening of mind? Basically, strengthening of mind is, you can say, emotionally strong or stable, ability to understand one's own feeling and others feeling also, and differentiating it unbiasedly irrespective of the surrounding, is what you meant by emotionally strong, is meant by emotionally stable. To become that, one has to be mentally stable by learning new things. आप कैसे उसको नई चीजों को लर्न करेंगे? ओवरकमिंग योर पास्ट नेगेटिव इमोशंस। कोई कोई ऐसी चीज है जो आपको हैम्पर कर रही है, उन सब चीजों को भुलाते हुए, फॉरगेटिंग ऑल दोज नेगेटिव इमोशंस, यू यू लर्न न्यू थिंग्स। आप में एक जिज्ञासा होती है उन नई चीजों को जानने की, परखने की, उसको सीखने की। एंड फॉर दैट वन हैज टू बी मेंटली स्ट्रांग, वन हैज टू बी इमोशनली स्ट्रांग। और जैसे आप इमोशनली स्ट्रांग होते हो, मेंटली स्ट्रांग होते हो, विद ऑल योर पॉजिटिव इमोशंस, विद ऑल दीज स्ट्रेंथ्स, यू आपको काम तो करना है। यू हैव टू विन डेली स्ट्रेस। यू बिकम लाइक दैट। जीवन है, चिंताएं लगी रहती हैं, स्ट्रेस होते हैं। इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए ही आप में वो पॉजिटिविटी का लेवल इतना ज्यादा होना चाहिए कि जिससे आप आगे नया काम एक नई ताकत के साथ कर सके। फॉर दैट योर माइंड हैज टू बी स्ट्रांग एनफ। और उसके लिए क्या होता है? देयर आर वेरियस मेथड्स एक्सप्लेन मैनी अ वेज। कई जगह पे आपको देखने मिलेगा कि वेरियस मेथड्स बताए गए हैं टू बी इमोशनली स्ट्रांग, टू बी मेंटली स्ट्रांग, एंड वन ऑफ दैट वेरियस मेथड इज मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपका माइंड, आपका मन इतना स्ट्रांग हो जाता है और आपका वो ऑरा जनरेट हो जाता है, आपका माइंड इतना स्टेबल हो जाता है कि आप अपने आगे के उन चीजों के, उन नेगेटिव थॉट्स, उन नेगेटिव इमोशंस को ओवरकम कर जाते हैं एंड यू बिकम सक्सेसफुल, कम आउट ऑफ दैट ऑल दोज थिंग्स इन अ पॉजिटिव मैनर। अब होता यह है कि यू विल फाइंड इन योर लाइफ सम ऑफ द इंडिविजुअल्स, सम ऑफ द हेल्दी इंडिविजुअल्स टू, जो आपको सीधे कहते हैं कि नहीं, आई कैन नॉट गो फॉर ऑल दीज थिंग्स, मैं नहीं जा सकता या मैं नहीं परफॉर्म कर सकता। इन दैट मैनर पंचकर्म इज क्वाइट हेल्पफुल। इन दैट मैनर पंचकर्म जो है वो उन चीजों को आप पैसिवली आपकी बॉडी में इंड्यूस कर देता है, जिसको आप एक्टिवली मेडिटेशन या किसी और तरीके से ला सकते थे। And one of the procedures, there are plenty of procedures, and one of the main procedure for that is मूर्ध तेल, और उसमें भी एक सबसे important procedure is शिरोधारा. Again, this shirodhara can be included in the servicing of body. It's an external procedure. Although it's an external procedure,
तब भी आप इसको भी, वो जो सर्विसिंग ऑफ बॉडी जिस थॉट के साथ हम ये स्ट्रेंथनिंग ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल के लिए बैठे हैं, ये शिरोधारा को इंक्लूड कर। शिरोधारा कम्स आउट फ्रॉम टू वर्ड्स, शिरो एंड धारा। एंड व्हाट इज शिरो? शिरो मींस द सिर प्रदेश, एंड धारा मींस किसी चीज की धार टपकाना। एंड वो जो किसी चीज है वो ज्यूरिसडिक्शन है स्पेशलिस्ट का, डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल, किस तरह की प्रकृति का है, किस तरह का दोष है वहां पे, उस हिसाब से। केवल मात्र ये दोष और प्रकृति एलिमेंट्स में नहीं मिलती, किसी व्याधित व्यक्ति में नहीं मिलती, ये नॉर्मल इंडिविजुअल में भी मिलती। नॉर्मल जब फिजियोलॉजी होती है वो भी इसी के द्वारा होती है। तो शिरोधारा एक पर्टिकुलर धार हम टपकाते हैं फोरहेड के ऊपर, फोरहेड के सेंटर ऑफ द फोरहेड के ऊपर। एंड इमोशनल evolutional evolution wise, it is the point, the center is related to the third eye and which is related to the pineal gland, जिसको हम आज्ञा चक्र मानते हैं योग में। या तो ये धारा बिल्कुल सीधी गिरी जाती है, या इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल पेंडुलम मोशन में हम यहाँ पर गिराते हैं, closing the eyes of the individual, keeping a swab over there and asking the patient to concentrate on this dhara. What is going to happen? One of the individual came to me with the complaint like कि जी मेरे को 6 महीने से नींद ही नहीं आई, मैं सोया ही नहीं। And we found that insomnia का केस जैसे वो था, I'm again talking about some patient, वो जो द्रोणी है that is a hard wooden द्रोणी, and on the third day only we found that that particular individual is snoring on that table. So what happens with this dhara? जब आप मेडिटेशन करते हैं, those who are used to do all these things, you used to concentrate on one particular thing. और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, we'll discuss in our later on this one lecture. And इस धार को गिराने का पैसिवली जो हम उसका ध्यान उधर केंद्रित करते हैं एक साउंड फ्री रूम में, या कई बार हम वहां पर एक मेडिटेशनल या कोई एक सिंपल म्यूजिक जो एक हार्मनी पैदा करता है, वैसा कोई म्यूजिक थेरेपी के साथ इसको ज्वाइन करते हैं, तो हमें वैसे ही रिजल्ट मिलते हैं। और क्या होता है एक्चुअली, scientifically this has been proven that increases the alpha rhythm. Now what is this alpha rhythm? There are 5 kinds of waves brain produce. Those are beta, alpha, theta, gamma and delta. Why I'm saying about alpha? Only the alpha rhythm is important. ये जो सबसे ज्यादा alpha rhythm आती हैं EEG में, just before sleep. Just before sleep means when your mind is totally relaxed but you are awakened. आपको पता है आपके सराउंडिंग का, but your mind is relaxed. Next comes is the sleep, and उसमें theta 1 and theta 2 kind of waves रहती हैं. Theta 2 is like deep sleep, you can say, जहाँ without dream sleep होती है. Theta 1 is sleep but with dreams and deep meditation sort of में theta 1 waves आती है. We are not concerned, we are only concerned about alpha rhythm जो increase होती हैं after doing this shirodhara. What this alpha rhythm, what this alpha waves does, करेंगे क्या है, ये boost your creativity. अब आप खुद सोचिए, you cannot concentrate, आप अपनी अल्फा रिदम्स को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पा रहे हैं और मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, बट यू आर परफेक्टली ऑलराइट। आप सिंपली एक शिरोधारा, और बहुत सिंपल है, यू कैन परफॉर्म इट एट योर होम। अगर आप माने डेली बेसिस पर, तो आप जलधारा भी कर सकते हैं, दुग्धधारा कर सकते हैं। तो ये आप घर पे भी एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बना के अपने इस पे 15 मिनट 20 मिनट यदि धार गिराते हैं, तो इसका भी वही कार्य है जो आपके मेडिटेशन का कार्य है। It boosts your creativity. It reduces symptoms of your depression and helps forgetting the chronic pain. Now, what do you understand by chronic pain? It's not the dard. It's basically कोई एक झटका है, कोई एक पुराना दर्द है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। कोई नियर एंड डियर लाइफ में चला गया है, some kind of that. यही सारी चीजें आपके डिप्रेशन को भी बढ़ाती हैं, आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक करती हैं। अब आप सोचिए कि ये तीनों चीजों को जब आप कोरिलेट करते हैं, तो अल्फा वेव्स की कितनी इंपॉर्टेंस है लाइफ में।
ये चीज को बढ़ाने का काम शिरोधारा करता है पैसिव। सो जब ये शिरोधारा करते हैं तो स्ट्रेंथन ऑफ माइंड। एंड अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग अल्फा वेव्स, व्हाट शिरोधारा डज इज इट डाउन रेगुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक आउटफ्लो। सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम करता है। सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम करेगा तो रिजल्ट्स इन डिक्रीजिंग इन रेट ऑफ ब्रीदिंग, diastolic blood pressure, heart rate, and serotonin and catecholamines. It decreases all these things: breathing, heart rate, diastolic blood pressure, and enzymes like serotonin and catecholamines. Serotonin catecholamines decrease होंगे तो stress relief होगा, induces sound sleep को induce करेगा, and सबसे बड़ी बात tranquility. हम सोने के लिए क्या कहते हैं? We use tranquilizers. बहुत कॉमन वर्ड है आजकल। हम ट्रैंक्युलाइजर्स का बड़ा यूज होने लगा जब से क्लासिकल जो नींद की दवाइयां बैन हो गई। व्हाई यू नीड ट्रैंक्युलाइजर्स व्हेन यू हैव गॉट सिंपल वेज लाइक दिस? तो करना सिर्फ ये है, अल्फा वेव्स को इंक्रीज करना है और सेरोटोनिन और कैटाकोलामाइंस जैसी चीजों को डिक्रीज करना है। तो यू विल स्ट्रेंथन योर माइंड। और जहां पे माइंड स्ट्रेंथन हो गई, बॉडी ऑलरेडी प्रोसीजर से स्ट्रेंथन हो गई, तो आप शरीर और मन को उस काबू में लाने के लिए पंचकर्म के द्वारा एबल हो गए। इन दो चीजों के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जैसे मैंने बताया कि चिकित्सा शास्त्र में, आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्र में एसेंस ऑफ दैट चिकित्सा इज पंचकर्म। सिमिलरली एसेंस ऑफ दिस बॉडी सोल। तो सोल कैसे आपकी स्ट्रेंथन होती है? नाउ सोल इज, जो आत्मा की हम बात कर रहे हैं, वो इमॉर्टल है, उसका चक्र चलता रहता है। ये मृत्यु रोग है, ये मृत शरीर है, आत्मा का आना जाना लगा रहता है। एंड द इनेट क्वालिटीज, जो जन्मजात उसकी जो क्वालिटीज हैं आत्मा की, वो बताई गई हैं। यू कैन स्टार्ट विद बी, ब्लिस, JKL, जॉय, नॉलेज, लव, and PQ, P3, power, the peace, and lastly the purity. So these are the innate qualities जिससे आत्मा आती है। और एक बहुत, बच्चों को देखिए आप, you will get all these qualities in them. वो बच्चे आपस में लड़ ले, उसके कारण उनके माँ बाप में मनमुटाव हो जाए, बात अलग होती है, लेकिन वो बच्चे हमेशा वैसे ही रहते हैं, वो आपस में फिर मिल जाते हैं, बिकॉज दीज आर द क्वालिटीज वन हैव, जो एक प्योर सोल, एक ब्लिसफुल सोल, एक लवेबल सोल, वो जो पैदा हुई थी, वो जो आई थी, मीन्स पैदा हुई थी, मीन्स उसके बाद वो शरीर पैदा हुआ। होता क्या है कि अभी हम पिछले इतने लेक्चर सीरीज में सुनते हुए आ रहे थे प्रज्ञा अपराध, प्रज्ञा अपराध। तो केवल मात्र, क्योंकि किसी भी व्याधि, किसी भी डिजीज को पैदा होने के लिए तीन ही चीजें चाहिए: असात्मेंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। परिणाम को भी हम एक तरफ करते हैं। असात्मेंद्रियार्थ संयोग मीन्स अपनी इंद्रिय, जैसे मन भी अपने आप में एक सुपर इंद्रिय है। तो जो इंद्रिय बताए उनका अपने अर्थों के साथ, अर्थ मीन्स वो जो चीज ग्रास्प करती हैं, उनके साथ असाथ में, मतलब उसका कम उसका संयोग होना, ज्यादा संयोग हो जाना, या मिथ्या संयोग, मतलब अलग तरीके से संयोग हो जाना। तो ये एक तरीका है। और प्रज्ञा मीन्स बुद्धि और उसका अपराध। मेन तो मन जो ये कार्य करता है, चंचल होता है, सब जानते हैं। यहाँ बैठे बैठे आंख बंद करिए एंड आप कहीं घूम के आ जाइए, लंदन घूम के आ जाइए, दुबई घूम के आ जाइए, चंचल मन। तो उस प्रज्ञापराध से एक एक आई कैनॉट से दीज क्वालिटीज, ये चीजें पैदा होती हैं विच आर ऑलमोस्ट ऑपोजिट। ब्लिस के ऑपोजिट यू कैन गेट मिजरी, जॉय के ऑपोजिट यू कैन गेट सॉरो, नॉलेज के ऑपोजिट यू कैन गेट इग्नोरेंस, लव के ऑपोजिट यू कैन गेट हेट, पावर के ऑपोजिट इनएबिलिटी। हियर दैट पावर इज नॉट लाइक दैट आई एम अ पावरफुल पर्सन। हियर पावर मीन्स द एबिलिटी टू डू द थिंग्स। What happens is, हम by the age, by the time, by our surrounding, तू नहीं करता तो मैं क्यों करूं? We become enable. वो inability. Peace के against में comes the unrest, restlessness.
एंड प्योरिटी के अगेंस्ट में वी गेट इम्प्योरिटी। तो ये ओवरकम करती है, ये उस 7 अच्छी क्वालिटीज के ऊपर आवरण चढ़ाती रहती है। इसलिए हम एक दूसरे के प्रति हेट्रेडनेस, घृणा और इस तरह की फीलिंग जनरेट करते रहते हैं, उसी को हवा देते रहते हैं। वी डू नॉट ब्रेक दैट साइकिल। तो टू गेट दो 7 क्वालिटीज, वो कैसे मिलेंगी? वो मिलेंगी प्रज्ञापराध जन्य कारणों से ये हुआ। तो वो जो ऊपर की अभी हमारी सीरीज हम बता रहे थे कि आप मन को कैसे शांत कर सकते हो, आप मन को कैसे पॉजिटिव, नॉट शांत, मन को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हो। कितना भी भूचाल आ जाए, कितनी भी तकलीफें आ जाए, मैं मेरे काम से, मेरे पथ से, मेरे राह से डिगूंगा नहीं। तो जब ये एबिलिटी रहती है तो आपका मन स्ट्रांग है। मेरी बॉडी इस चीज को, चाहे कुछ भी हो जाए, क्यों नहीं लगता सन्यासियों को या उनको, मैं आई एम नॉट सेइंग कि मैं किसी चीज को प्रमोट कर रहा हूँ, सर्दियों में भी वो एक दुशाला सा ओढ़ा और अपने कार्य में लगे रहे और ये सारी चीजें। तो ये वो चीजें हैं कि वी हैव स्ट्रेंथन अवर बॉडी लाइक दिस। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, जब आपका शरीर स्ट्रेंथन रहेगा, ताकतवर रहेगा, जब आपका मन ताकतवर है, तो आपकी सोल अपने आप उन इनेट क्वालिटीज को वापस ले लेगी, क्योंकि आप प्रज्ञापराध जन्य चीजें करेंगे ही नहीं। कोविड-19 क्या है? ऐसे तो कई चीजें आने वाले कई वर्षों में आ सकती, चाहे वो बायोमेडिकल वॉर के लिए पैदा की गई थी या वो किसी चीज को खाने से पैदा हुई थी। बट ये सारी चीजें हैं तो वही ना, आपका मन क्योंकि स्टेबल नहीं, दैट इज व्हाई दीज थिंग्स हैपेंस। तो जब ये मन स्वस्थ, मन ताकतवर, शरीर स्वस्थ, शरीर ताकतवर, तो आपकी आत्मा अपने आप ताकतवर रहेगी। और आत्मा ताकतवर अपनी इन 7 क्वालिटीज के आधार पर ही रहती है। इसलिए पंचकर्म न केवल बॉडी बल्कि मन और आत्मा को वापस स्ट्रेंथन करने में बहुत कारगर एक प्रणाली है। आई कैन नॉट से चिकित्सा प्रणाली है, एक प्रणाली है। और जब हेल्दी मन रहेगा, हेल्दी तन रहेगा, तो हेल्दी साइकोसोमैटिक बैलेंस बना रहेगा। आजकल मोस्ट ऑफ द डिसऑर्डर्स में यू विल गेट टू लर्न, यू विल गेट टू लिसन दिस वर्ड साइकोसोमैटिक, बिकॉज इंटररिलेटेड है, इंटररिलेटेड है एक दूसरे के। साइकोसोमैटिक बैलेंस बना रहेगा, हेल्दी लाइफ रहेगी, डिसऑर्डर बिना लाइफ रहेगी। एंड विद ऑल दीज थिंग्स, with all these positive minds, with all the strengthening of this body, mind and soul, from this मंच मैं एक बार यहाँ से सरकार तक को ये ओपिनियन या आह्वान करने का एक संदेश देना चाहूँगा कि इस तरह के क्यों ना हम हरियाणा स्टेट को अपनी पहली स्टेट बनाए, इस तरह के एक हेल्थ सेंटर्स, एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ सेंटर्स चालू करें, जिससे हम इस पूरे प्रांत को हेल्दी बना सकें, इस पूरे नेशन को हेल्दी बना सकें, अल्टीमेटली इस पूरी अर्थ को। Thank you very much for giving me a chance of this oration. Thank you.